عشق کی چنگاری سے میرا پر چھو رہا ہے۔ انسان محبوب کی تلاش میں نہیں بلکہ اپنی خود غرض خواہشات کے لیے غلام ڈھونڈ رہا ہے۔ غلام تو مل جاتا ہے مگر عشق نہیں ملتا۔ ہم قافلے کے ساتھ نیو شہر میں ایک انگوروں کے باغ میں رک گئے۔ سلطان ولد ہمیشہ کی طرح شوق و اشتیاق سے مجھ سے سوال کر رہا تھا تاکہ کچھ سیکھ سکے۔ مرشد، آپ تصوف کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تصوف عشق کا مذہب ہے۔ تصوف اللہ کے سامنے فقیری اختیار کرنا ہے، اس کے حضور عاجز و بے بس ہونا، اس کی محتاجی کا اعتراف کرنا ہے، اور جب یہ اعتراف خلوص کے ساتھ ہو تو یہ محبوب تک پہنچنے کی ایک شدید خواہش میں بدل جاتا ہے۔ شیخ کون ہے اور درویش کون ہوتا ہے؟ شیخ اور درویش کا تعلق بالکل ایسے ہے جیسے انگوروں کا گچھا اور وہ شاخ جس سے وہ گچھا جڑا ہوتا ہے۔ شیخ انگوروں کو درخت تنے اور جڑ سے جوڑتا ہے۔ آنکھیں روح کا آئینہ ہوتی ہیں اور شیخ اپنے مریدوں کی آنکھوں میں دیکھ کر ان کے دل کا حال جان لیتا ہے۔ شیخ کی نگاہ بہت گہری اور اثر انگیز ہوتی ہے۔ ہر وہ شخص جو چمکدار لباس پہنے یا کوئی اور خاص چیز اختیار کرے وہ شیخ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر تمہیں کوئی حقیقی شیخ مل جائے تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کی رضا میں اس کے تابع ہو جاؤ اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ آؤ درویشوں کو بلاؤ، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک روز عصر سے پہلے شیخ وضو کرنے کے لیے آنگن میں آیا اور ایک درویش سے ایک ابریق پانی لانے کو کہا۔ درویش پانی لے آیا۔ شیخ بیٹھ کر وضو کرنے لگا، لیکن ساتھ ہی باغ میں بیٹھے درویشوں پر نظر بھی ڈال رہا تھا۔ پانی ڈالنے والا درویش دیکھتا ہے کہ شیخ کے ہاتھ کا کچھ حصہ خشک رہ گیا ہے۔ دل میں کہتا ہے یہ ہمیں مرشد بن کر سکھائے گا، یہ تو ٹھیک سے وضو بھی کرنا نہیں جانتا۔ درویش کے چہرے پر تمسخر اور بدگمانی کے آثار نظر آنے لگے۔ شیخ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اس کے دل کا حال پڑھ لیا۔ کہا، بیٹے تم ہمارے لائق نہیں ہو، شام ہونے سے پہلے درگاہ چھوڑ دو۔ یہ سنتے ہی درویش شدید پشیمان ہوا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ درگاہ سے نکال دیا گیا۔ رات کی تاریکی میں بے یار و مددگار وہ کہاں جائے؟ نہ گھر تھا نہ کوئی شہر جہاں وہ جا سکے۔ پہاڑوں اور وادیوں میں دیوانہ وار چلنے لگا۔ بھوک ستانے لگی، رات گہری ہوتی گئی۔ پریشان حال وہ ایک روشنی کو دیکھتا ہے اور اس کی طرف بڑھتا ہے۔ آگ کے قریب ایک چرواہا کھانا پکا رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کے مہمان کے لیے کھانا اور روٹی ہے؟ ہاں، آؤ بیٹھو۔ چرواہے نے غور سے دیکھا، یہ رات کے وقت جنگل میں تنہا گھومنے والا آدمی کون ہے؟ یہ نہ تو تاجر ہے نہ سپاہی، درویشوں کی پوشاک پہنے ہوئے ہے، مگر یہ جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ جب درویش نے اپنی کہانی سنائی تو چرواہے کو اس پر رحم آیا۔ چرواہے نے کہا، اس پہاڑ کے پیچھے ایک شہر ہے جس کا نام ہے ایولہ، وہاں جا کر جو چاہو لے لو، بس ایولہ کہنا، سب کچھ مفت میں ملے گا۔ کیا یعنی وہاں پیسے کا لین دین نہیں ہے؟ نہیں، جو ایولہ کہے اس کے لیے سب کچھ مفت ہے۔ درویش حیران ہوا، اسے لگا چرواہا اس سے مذاق کر رہا ہے، مگر چرواہا سنجیدہ لہجے میں بول رہا تھا۔ لیکن سنو، اس شہر میں 3 اصول ہیں، اگر انہیں توڑو گے تو شہر سے نکال دیے جاؤ گے۔ کون سے اصول؟ پہلا، کسی کے معاملے میں مداخلت نہ کرنا۔ دوسرا، اللہ کے معاملات میں دخل نہ دینا۔ تیسرا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ یہ تو آسان ہے، درویش نے کہا، میں درگاہ میں تعلیم حاصل کر چکا ہوں، یہ سب معمولی اصول ہیں، میں انہیں کبھی نہیں توڑوں گا۔ صبح کے وقت گھبراتے ہوئے درویش شہر میں داخل ہوا تاکہ جان سکے کہ چرواہے نے سچ کہا تھا یا نہیں۔ وہ حمام میں گیا، نہایا، پھر کاؤنٹر پر آیا، دائیں ہاتھ کو سینے پر رکھا اور کہا، اے واللہ۔ حمام کے مالک نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے واللہ۔ میرا حساب؟ اے واللہ بھائی، تمہارا کوئی حساب نہیں، تم نے اے واللہ کہا تھا نا۔ درویش حیرت میں پڑ گیا، مگر خوش بھی تھا۔ وہ روٹی کے تندور پر گیا، وہاں وہی حال، جو بھی اے واللہ کہتا کوئی پیسے اس سے نہ لیے جاتے۔ درویش دل میں کہنے لگا، اچھا ہوا کہ درگاہ سے نکال دیا گیا، اس شہر میں تو سب کچھ مفت ہے، میں یہاں بادشاہوں کی طرح مزے میں رہوں گا۔ 1 مہینہ گزر گیا، درویش اپنی زندگی سے خوش تھا۔ ایک دن اپنے ایک دوست کے پاس گیا اور کہا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ دوست مسکرایا اور کہا، بس اے واللہ کہہ دو۔ یہ بھی اے واللہ سے؟
हाँ, कल बाजार में गुलामों और बांदियों का बाजार लगेगा। वहाँ हर कौम और मुल्क की हसीन औरतें मिलेंगी। अरब, अजम, हिंद, रोम, बस जिसे पसंद करो उसके मालिक को एवल्ला कह दो। दरवेश ने ऐसा ही किया और उसकी शादी हो गई। एक हफ्ते बाद दरवेश बाजार में घूम रहा था। अचानक उसने देखा एक नौजवान लड़की खुले बालों और बेपर्दा लिबास में थी, जबकि उसके साथ एक बड़ी उम्र की औरत थी जो सरापा पर्दे में लिपटी हुई थी, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। दरवेश गुस्से से चीखा, ये क्या हाल है? जिसे पर्दा करना चाहिए वो खुली घूम रही है, और जो पर्दे की मोहताज नहीं वो मुकम्मल ढकी हुई है। नौजवान लड़की ने फौरन शोर मचा दिया, मदद, सिपाहियों को बुलाओ। सिपाही दौड़ते हुए आए। क्या हुआ? इस आदमी ने लोगों के मामलात में दखल दिया है। सिपाहियों ने दरवेश को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले जाकर 10 कोड़े मारे। जब दरवेश थाने से बाहर आया तो उसे मार खाने से ज्यादा इस बात का दुख था कि वो सिर्फ एक गलती की निशानदेही कर रहा था और उसे सजा दे दी गई। वो थाने के बाहर खड़ा हुआ, आसमान की तरफ हाथ उठाया और बुलंद आवाज में कहा, "ऐ अल्लाह, ये क्या निज़ाम है? मैंने तेरे बंदों को राह रास्त पर लाने की कोशिश की और मुझे सजा मिली। ये कैसा इंसाफ है?" एक शख्स ने फौरन सिपाहियों को पुकारा, "सिपाही, सिपाही!" सिपाही आए और पूछा, "अब क्या हुआ?" "ये दरवेश अल्लाह के मामलात में मुदाखलत कर रहा है।" दरवेश को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और एक बार फिर 10 कोड़े पड़े। दरवेश जख्मों से चूर नढाल घर पहुंचा और बिस्तर पर गिर गया। आधे घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी बीवी ने दरवाजा खोला। ये उसके शिकार के साथी थे जो उसे जंगल में शिकार के लिए बुलाने आए थे। बीवी अंदर आई और कहा, "आपके दोस्त आए हैं, पूछ रहे हैं कि आप शिकार के लिए जाएंगे या नहीं?" दरवेश ने तकलीफ के साथ कहा, "कह दो मैं घर पर नहीं हूँ।" बीवी हैरान हुई, "ये तो झूठ होगा।" दरवेश बोला, "बस कह दो कि मैं घर पर नहीं।" बीवी ने फौरन सिपाहियों को बुला लिया। "सिपाही, सिपाही!" सिपाही दौड़ कर आए। "अब क्या हुआ? मेरा शौहर मुझे झूठ बोलने पर मजबूर कर रहा है।" सिपाहियों ने दरवेश को शहर से निकाल दिया। गंदगी, मट्टी और जख्मों में लथपथ वो शहर की तरफ मुड़ा, अपनी रान पर हाथ मारा और पछताते हुए कहा, "जो एवल्ला का मतलब ना समझे वो अफसोस के सिवा कुछ नहीं पा सकता। आरिफ वही होते हैं जो खुद भी पाकीज़ा होते हैं और दूसरों को भी पाकीज़ा करते हैं।" जब हम अक्सराय पहुंचे तो सब थकन से चूर थे। एक कारवां सराय में दाखिल हुए। सुल्तान वलद ने एक दरवेश को कासिद बनाकर भेजा ताकि कूनिया के करीब पहुंचने की खुशखबरी दे। मैं सराय की बालकनी में बैठा था। चंद दरवेश मेरे गिर्द जमा होकर घुटनों के बल बैठ गए। उनके चेहरों से जाहिर था कि उनके दिल में कुछ सवालात थे, मगर झिझक रहे थे। उन्होंने सुल्तान वलद से मशवरा किया, "क्या हमारे सवालात का जवाब मिलेगा?" सुल्तान वलद ने कहा, "तबरेज़ी पीर से हिजाब महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं। सफ़र के दौरान आपने नहीं देखा वो कितने अजीम इंसान हैं। बिला झिझक जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो।" एक दरवेश ने पूछा, "हज़रत अल्लाह की याद और उसकी मोहब्बत की कैफियत कैसी होती है?" मैंने जवाब दिया, "अगर लोग अल्लाह की मोहब्बत का तजर्बा करना चाहते हैं तो उन्हें अल्लाह और दुनिया की हर शय के दरमियान फ़र्क करना होगा। इंसानी मोहब्बत और कमाल का राज ये है कि दिल की निगाह मखलूक़ात के हजूम में भी अल्लाह को देख सके। आदम आशिकों के लिए एक मिसाल है। हकीकत में मोहब्बत ने दोनों जहानों की चमक को मांद कर दिया है। इबादत के दायरे में जन्नत और दोज़ख की अहमियत होती है, मगर मोहब्बत की दुनिया में ये दोनों महज एक ज़र्रा खाक के बराबर भी नहीं। चुनाचे आदम को 8 जन्नतें दी गईं, मगर उन्होंने इन्हें महज एक गंदम के दाने के बदले में बेच दिया। उन्होंने मोहब्बत के सामान को तकदीर के ऊंट पर लादा और गम की वादी में उतर गए। "ए आदम, जन्नत में दाखिले की हकीकत क्या है?" आदम ने जवाब दिया था, "जन्नत उसके लिए कीमती है जो दोज़ख से खौफजदा हो, मगर जो सिर्फ अल्लाह से डरता है उसके लिए जन्नत महज एक गंदम का दाना भी नहीं।" लिहाजा आदम को जन्नत से निकालने की हिकमत ये थी कि उनके दिल में अल्लाह की याद को उजागर किया जाए। आदम की अजमत ये थी कि उन्होंने अमानत का बोझ उठाया और ये अमानत अल्लाह की मोहब्बत थी। सिर्फ उन्होंने मोहब्बत की इंतहा को पहचाना, क्योंकि यही मोहब्बत उनकी तख्लीक की असल वजह थी। उन्हें मालूम था कि मोहब्बत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक जुदाई का दर्द ना चखा जाए। इसीलिए उन्होंने वो ममनुआ फल खाया। दरवेश ने सवाल किया, "हज़रत, हमारे वालिद आदम की मग़फ़रत कैसे हुई?" मैंने जवाब दिया, "ए दरवेश, ये न समझना कि आदम को सिर्फ एक गंदम का दाना खाने पर जन्नत से निकाल दिया गया था। अल्लाह ने उन्हें खुद बाहर निकालना चाहा था। उन्होंने कोई हुक्म तोड़ा नहीं था, बल्कि अल्लाह का हुक्म कभी टूट नहीं सकता।
कल क़यामत के दिन अल्लाह हज़ारों गुनाहगारों को जन्नत में दाखिल फरमा देगा, तो क्या वो आदम की एक मामूली सी खता पर उसे जन्नत से निकाल देता? आदम का जन्नत से निकलना मोहब्बत के चेहरे पर एक नकाब था। ये आलम वजूद खुद एक हजाब है, तो इसमें जो भी कुछ है वो भी हजाब है। मग़फ़िरत का रास्ता मोहब्बत में पोशीदा है, और तसव्वुफ़ का रास्ता भी इश्क का रास्ता है। मोहब्बत को अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। ये ऐसे है जैसे किसी ऐसे शख्स को शहद का जायका समझाना जिसने कभी शहद चखा ना हो। वो कभी नहीं समझ सकता। मोहब्बत हर चीज़ में हुस्न और खैर को देखने का नाम है। ये है हर चीज़ से सीखना, हर नेमत में अल्लाह की सखावत को पहचानना और हर अता पर शुक्र अदा करना। एक और दरवेश ने सवाल पूछा, अगर इश्क की तड़प और जुदाई की अजियत हमें बगावत पर मजबूर कर दे तो हम क्या करें? मैंने कहा, मोहब्बत एक अनोखी लज्जत है। ये एक ऐसा दर्द है जो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसके दिल में मोहब्बत है। जो इस मोहब्बत को अपने सीने में रखता है वो हर चीज़ में अल्लाह को देखता है और जान लेता है कि हर रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है। इंसान यकीन हो जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई और मौजूद नहीं, ला मौजूद इल्लल्लाह। ये शऊर आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ता है और आशिक इस मोहब्बत में फ़ना हो जाता है। वो हक के समंदर में गर्क हो जाता है। जो कुछ भी आपने मोहब्बत में चखा, चाहे वो किसी भी शक्ल या शिद्दत में हो, ये महज अल्लाह की मोहब्बत का एक मामूली हिस्सा है। यहाँ तक कि मर्द और औरत के दरमियान मोहब्बत भी उसी इलाही मोहब्बत का एक परतव है। मगर दुनियावी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत का रास्ता भी हो सकती है, और इसमें पर्दा और रुकावट भी हो सकती है। मगर एक दिन ये पर्दा हट जाएगा और असल महबूब अपनी तमाम तरशान व अज़मत के साथ ज़ाहिर हो जाएगा। मगर ये भी ज़रूरी है कि हमें मोहब्बत भी दी जाए। मोहब्बत करना मोहब्बत पाने से कहीं ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर तुम सच्चे आशिक हो तो एक दिन ज़रूर हकीकी महबूब तक पहुँच जाओगे। एक और दरवेश ने सवाल किया, इश्क की महफिल में कौन जाम है और कौन शराब? मैंने कहा, मुर्शिद इश्क का साकी है और दरवेश वो जाम है जिन्हें इश्क से भरा जाता है। इश्क असल शराब है और तालिब यानी दरवेश साकी के हाथों भरे जाते हैं। लेकिन ये सबसे मुख्तसर रास्ता है, क्योंकि इश्क इंसान को और भी बहुत से ज़राए से अता हो सकता है। एक बार मेरे एक दरवेश ने सवाल किया, क्या दरवेश का अपने मुर्शिद के लिए इश्क दुनियावी मोहब्बत की एक मिसाल है? मैंने जवाब दिया, दरवेश और मुर्शिद का ताल्लुक़ सिर्फ दुनिया की सतह पर नहीं देखा जा सकता, बल्कि आखिरत की रोशनी में देखना चाहिए। जुलेखा ने यूसुफ की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। दौलत, शोहरत, इज़्ज़त सब छोड़ दिया। वो उस इश्क में इतनी खो गई कि जो भी उसे यूसुफ की खबर देता वो उसे कीमती जवाहरात दे देती। ये मिस्र के इशराफिया के लिए एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया था, क्योंकि एक रईस ज़ादी अपने ग़ुलाम की मोहब्बत में मुब्तला थी। मगर ये आम मोहब्बत नहीं थी। ये ऐसी मोहब्बत थी जो इंसान को खुद अपनी ज़ात से बेखबर कर देती है और समाज के असूल और लोगों की मलामत से बेखौफ कर देती है। बरसों बाद यूसुफ और जुलेखा के हालात मुकम्मल तौर पर बदल चुके थे। यूसुफ फ़िरौन के मुशीर और सल्तनत के दूसरे बड़े आदमी बन चुके थे, जबकि जुलेखा मस्कीनी और गुर्बत में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। एक दिन यूसुफ शाहाना लिबास पहने अपने सिपाहियों और वज़ीरों के साथ गुजर रहे थे और उन्होंने जुलेखा को सड़क के किनारे खस्ता हालत में देखा। यूसुफ ने कहा, जुलेखा, जब तुम मुझसे शादी करना चाहती थी तो मैं तुम्हें कबूल नहीं कर सकता था, क्योंकि तुम मेरे आका की बीवी थी। अब तुम आज़ाद हो और मैं भी ग़ुलाम नहीं रहा। अगर तुम चाहो तो हम शादी कर सकते हैं। जुलेखा ने यूसुफ की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग रोशनी थी। नहीं यूसुफ, तुम्हारी मोहब्बत मेरे और हकीकी महबूब के दरमियान महज एक पर्दा थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पर्दे को चाक कर दिया है। अब जबकि मैंने हकीकी महबूब को पा लिया है तो मुझे तुम्हारी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं। जुलेखा ने यूसुफ की मोहब्बत के ज़रिए वो हकीकी इश्क पा लिया जिसकी जुस्तजू हर कोई करता है। एक दरवेश ने सवाल किया, हज़रत, वो कौन सी बुरी सिफात हैं जो दिलों को मुर्दा कर देती हैं? हम अक्सर इस पर बहस करते हैं लेकिन किसी नतीजे पर कभी नहीं पहुँचे। आपकी राय से हमें रोशनी मिलेगी। मैंने कहा, 10 बुरी सिफतें हैं जिनकी वजह से तुम्हारे दिल मरे। अल्लाह मुर्दा दिलों की दुआ कबूल नहीं करता। 1, तुम कहते हो कि तुम अल्लाह को जानते हो मगर उसका कर्ज अदा नहीं करते। ये कर्ज क्या है? ये कर्ज है गरीबों और मोहताजों की मदद करना। 2, तुम कुरान की तिलावत करते हो मगर उसके अहकामात और असूलों पर अमल नहीं करते। 3, तुम कहते हो कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है मगर फिर भी उसकी इताअत करते हो, उसके वसवसों में आ जाते हो। 4, तुम खुद को उम्मत मोहम्मदी का फ़र्द समझते हो
मगर सुन्नत पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। 5, तुम जन्नत में दाखिल होना चाहते हो मगर उसके लिए जो आमाल ज़रूरी हैं वो नहीं करते। तुम जहन्नम से बचना चाहते हो मगर अपने गुनाहों और बुरे आमाल की वजह से खुद को जहन्नम की तरफ धकेल रहे हो। 6, तुम जहन्नम से बचना चाहते हो मगर अपने गुनाहों और बुरे आमाल की वजह से खुद को जहन्नम की तरफ धकेल रहे हो। 7, तुम जानते हो कि मौत हर किसी पर आती है मगर उसकी कोई तैयारी नहीं करते। 8, तुम दूसरों के ऐब देखते हो मगर अपने ऐबों पर नज़र नहीं डालते। 9, तुम अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाते हो मगर उसका शुक्र अदा नहीं करते और ना ही मोहताजों को इन नेमतों में शरीक करते हो। 10, तुम रोज़ अपने मुर्दों को दफन कराते हो मगर इबरत नहीं पकड़ते और ये भूल जाते हो कि एक दिन तुम्हें भी ऐसे ही दफन किया जाएगा। जैसे आईना चेहरे के दाग दिखाता है ऐसे ही अल्लाह का वली इंसान के ऐबों को जाहिर करता है। दरवेश ने पूछा, हमने सुना है कि आपने शम्स नाम सूरह शम्स की एक आयत से मुतासिर होकर रखा। उस आयत में लिखा है, जिसने अपने नफ्स को पाक किया वही कामयाब हुआ। क्या आप इसकी हिकमत वाज़े करेंगे? मैंने कहा, रूह का ताल्लुक इस दुनिया से नहीं बल्कि ये हक के मकाम से आई है। जब रूह जिस्म में कैद होती है तो एक पिंजरे में कैद परिंदे की तरह बेचैन होती है, जिसमें मुख्तलिफ आज़ा हैं जैसे दिल, मगर ये रूह के बगैर कुछ नहीं। ताकत रूह में है मगर आमाल जिस्म के ज़रिए अंजाम दिए जाते हैं। अगर रूह जिस्म के ज़रिए अच्छे आमाल करती है तो यही रूह की कामयाबी है, लेकिन अगर ये जिस्म को बुरे कामों में लगा देती है तो यही इसकी बर्बादी है। अल्लाह ने कोई चीज़ बुरी पैदा नहीं की बल्कि हम अपनी महदूद अक्ल और ख्वाहिशात की वजह से चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं। क़यामत के दिन जिस्म कहेगा, मेरी कोई ताकत ना थी, मैं तो मजबूर था, और रूह कहेगी, मेरे पास खुद अमल करने का कोई वसीला ना था। फिर जवाब आएगा, तुम दोनों एक अंधे और लंगड़े की तरह थे। लंगड़ा देख सकता था मगर चल नहीं सकता था, अंधा चल सकता था मगर देख नहीं सकता था। तुम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और बुरे आमाल किए, लिहाजा तुम दोनों मुजरिम हो। नफ्स अना बज़ाते खुद बुरी नहीं बल्कि इसका दर्जा बुलंद करना ज़रूरी होता है। नफ्स के 3 दर्जे हैं। नफ्स अम्मारा, बुराई की तरफ माइल ईगो। इस दर्जे में इंसान की तमाम ख्वाहिशात सिर्फ जिस्मानी और नफसानी लज्जतों के गिर्द घूमती है। नफ्स लव्वामा, खुद को मलामत करने वाली ईगो। इस दर्जे पर इंसान अपनी गलतियों का एहसास करता है और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक जीने की कोशिश करता है। नफ्स मुतमइन्ना, अल्लाह की रज़ा में राज़ियाना। इस दर्जे पर इंसान खैर और शर, हर चीज़ को अल्लाह की तरफ से समझ कर राज़ी रहता है। अल्लाह फरमाता है, हमने आदम में रूह फूंकी। ये वही रूह है जो मरने के वक्त अपने रब की तरफ लौट आके हुक्म पर लौटती है। अंबिया और औलिया की रूहें आम लोगों से ज़्यादा पाकीज़ा होती हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनके जिस्म भी पाक जगहों की मिट्टी से बनाए। ये बदन कभी बुराई नहीं करता, इसलिए उनकी रूह को भी कोई गुनाह आलूदा नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया, जो अपने नफ्स को पहचान ले वो अपने रब को पहचान लेगा। ये 2 तरीक़ों से समझा जा सकता है। पहला मतलब, जब हम अपनी ज़रूरियात, कमज़ोरियों और ख्वाहिशात को पहचान लेते हैं तो हमें ये भी समझ में आ जाता है कि अल्लाह सबसे ताकतवर और बेनियाज है और हमें उसी की पनाह और मदद की ज़रूरत है। दूसरा मतलब, जो ज़्यादा गहरा है, अल्लाह ने फरमाया है, मैं तुम्हारी शाहरग से भी ज़्यादा करीब हूँ। जब हम खुद को जानने लगते हैं तो हमें एहसास होता है कि अल्लाह हमारे अंदर मौजूद है और उसी के ज़रिए हम हकीकत तक पहुँच सकते हैं। ये राज सिर्फ उन पर खुलता है जो अपने दिल को पाक करते हैं और अल्लाह की याद में रहते हैं। दुनिया में ही अल्लाह की तरफ लौटना मुमकिन है, मगर कैसे? सिर्फ अल्लाह के अहकाम को मान कर और अपनी ख्वाहिशात को शैतान के बहकावे से बचा कर। जो अल्लाह की तरफ लौटेंगे वो कामयाब होंगे और जो शैतान के रास्ते पर चलेंगे वो हमेशा के लिए भटक जाएंगे। पसंद आया? ये वही मार्फत है जो दिल को जिंदा कर देती है और नफ्स को आला दर्जे तक ले जाती है। अंगूर का दाना अगर शाख से टूट जाए तो जल्दी ख़राब हो जाता है, मगर जो जुड़ा रहे वो ज़्यादा देर तक तरोताज़ा रहता है। हर चीज़ अपनी असल में खूबसूरती होती है, बदनुमा सिर्फ ज़ाहिरी सिफ़ात होती हैं। रूह की मिसाल एक चिराग की रोशनी की तरह है। जब इंसान सोता है तो रूह जिस्म के साथ अपना ताल्लुक़ मुकम्मल तौर पर तोड़े बगैर एक ख़ास हद तक उससे अलग हो जाती है। ये रोशनी लोहे महफूज तक पहुँचती है और अपने मुताल्लिक़ा हिस्से पढ़ लेती है। जब इंसान जागता है तो ऐसे लगता है जैसे चिराग की रोशनी वापस अपनी जगह आ गई हो। यही वजह है कि बाज़ औक़ात हमें वो चीज़ें मालूम हो जाती हैं जो आम हालात में नामुमकिन लगती हैं,
मगर ये सब कुछ इलाही इल्म का एक छोटा सा हिस्सा है। ख्वाब में जो निशानियां और अलामतें होती हैं उन्हें हर कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ वही लोग उन्हें ठीक तरह से पढ़ सकते हैं जो बातनी इल्म में महारत रखते हैं। ये अलामतें हर रूह, हर दर्जे और हर शख्स के लिहाज से मुख्तलिफ मानी रखती हैं। क्या तमाम रूहें एक जैसी होती हैं? नहीं, हर इंसान में 7 मुख्तलिफ किस्म की रूहें होती हैं। रूह मादनी मट्टी और पत्थर जैसी चीज़ों में पाई जाती है। रूह नबाती पौधों में ज़िंदगी की ताकत पैदा करती है। रूह हैवानी जानवरों की जबिल्लत, भूख, गुस्सा और ख्वाहिशात पैदा करती है। रूह इंसानी इंसान में अकल, सोच और शऊर पैदा करती है। रूह मलकी फरिश्तों जैसी लताफत और पाकीज़गी अता करती है। रूह सिर ये खालिस रूहानी मकाम है जो अल्लाह के राज़ों को समझ सकता है। रूह सिर ये सबसे आला दर्जा है जिसमें हकीकत का मुकम्मल अदराक होता है। ख्वाबों में जो अलामतें नज़र आती हैं उनका ताल्लुक़ इस बात से होता है कि कौन सी रूह ने वो ख्वाब देखा है। मसलन अगर हैवानी या नबाती रूह ख्वाब देखे तो वो जिस्मानी ख्वाहिशात और जबिल्लतों से मुताल्लिक होगा। मसलन अगर आप भूखे सोएं तो ख्वाब में खाना खाते नज़र आएंगे। अगर इंसानी रूह ख्वाब देखे तो उसमें अलामती ज़बान होगी। मसलन सांप देखना माल की अलामत हो सकता है, मगर किसी दरवेश के लिए ये एक रूहानी आजमाइश की निशानी भी हो सकती है। वली बनना अफजल है या आलिम दीन? अगर बातनी इल्म महज पढ़ने और सीखने से हासिल हो सकता तो फ़खरुद्दीन राज़ी को 20 साल हज़रत बायज़ीद बस्तामी और जुनैद बगदादी के सामने शागिर्दी में बैठना पड़ता। फ़खरुद्दीन राज़ी ने कुरान की तफसीर पर हज़ारों सफ़हात लिखे, मगर उनका इल्म बायज़ीद बस्तामी की गली की खाक को भी नहीं पहुँच सका, क्योंकि उन्होंने महज अल्फाज में इल्म को ढूंढा मगर बातिन में हकीकत का दरवाज़ा ना खटखटाया। कुछ औलिया की करामतें ज़ाहिर नहीं होती, इसलिए वो आम लोगों पर अपने राज आश्कार नहीं करते। बायज़ीद बुस्तामी 70 मरतबा पैदल हज कर चुके थे। एक दिन रास्ते में देखा कि कुछ लोग शदीद प्यास की वजह से परेशान हैं। करीब में एक कुत्ता भी मौजूद था जो प्यास की शिद्दत से कांप रहा था। बायज़ीद ने ऐलान किया, जो मुझे एक प्याला पानी देगा मैं उसके बदले अपना हज कुर्बान कर दूंगा। मगर किसी ने तवज्जो ना दी। उन्होंने फिर कहा, 6 हज, 7 हज, बल्कि 70 हज दे दूंगा। तब एक शख्स राजी हो गया। बायज़ीद ने पानी लिया और कुत्ते के करीब ले गए, मगर कुत्ते ने पानी पीने से इनकार कर दिया। तब उनके दिल में ख्याल आया, कितना नेक काम किया, एक कुत्ते के लिए 70 हज कुर्बान कर दिए। यही ख्याल उनके लिए आजमाइश बन गया। अचानक अलहाम हुआ, बायज़ीद तूने नेकी की मगर दिल में गरूर आ गया, देखा कुत्ते ने भी तेरा पानी कबूल नहीं किया। बायज़ीद ज़मीन पर गिर पड़े, रोए और तौबा की। तब जाकर कुत्ते ने पानी पिया। एक दरवेश ने सवाल किया, कभी कभी हमें मौत से बड़ा डर लगता है, ये दरवेशी के खिलाफ तो नहीं, हम कैसे इस खौफ पर काबू पा सकते हैं? मैंने जवाब दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मरते नहीं, वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। जैसे दिन ख़त्म होता है और रात आती है, मौत भी बस एक पर्दा है जो एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी में ले जाता है। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो मौत से नहीं डरता, क्योंकि मौत के बाद तो वो अपने महबूब के करीब हो जाता है। मौत का खौफ सिर्फ उन लोगों को होता है जो दुनिया के ग़ुलाम होते हैं। जो अल्लाह के ग़ुलाम बन जाते हैं वो मौत को एक सफ़र समझकर खुशी से कबूल करते हैं। हकीकी इल्म क्या है? इल्म 2 तरह का होता है, ज़ाहिरी इल्म किताबों और दलीलों से हासिल होने वाला, बातनी इल्म दिल की रोशनी से हासिल होने वाला। ज़ाहिरी इल्म इंसान को आलिम बना देता है, मगर बातनी इल्म उसे वली बना देता है। वली इल्म का दरवाज़ा खोलता है और आलिम सिर्फ दरवाजे की दस्तक सुनता रहता है। अगर ज़ाहिरी इल्म ही सब कुछ होता तो फ़खरुद्दीन राज़ी के हज़ारों शागिर्द वली बन चुके होते, मगर ऐसा नहीं हुआ। वली वो होता है जो इल्म को अपने अमल में ढाल कर अल्लाह की मोहब्बत में फ़ना हो जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मरते नहीं बल्कि मुंतकिल होते हैं, यानी मौत कुछ और चीज़ है और मुंतकिली कुछ और। ज़रा तसव्वुर करो, तुम एक तंग व तारीक कोठरी में कैद हो, जहाँ न चलने की जगह है, न रोशनी, न सुकून। अगर तुम्हें वहाँ से निकाल कर एक खुली सरसब्ज खूबसूरत और रोशन बाग में मुंतकिल कर दिया जाए तो क्या तुम इसे मौत कहोगे? यही हाल मोमिन की मौत का होता है। ये अल्फाज एक आईना है। अगर तुम्हारे दिल में रोशनी है, अगर तुम्हारी रूह में चमक है, तो तुम मौत को खौफ की बजाय खुशी से कबूल करोगे। लेकिन अगर ये चाहत और शौक़ तुम में नहीं तो इसे पैदा करने के लिए जस्तजू करो, इसे ढूंढो, इसके लिए मेहनत करो, क्योंकि कुरान में फरमाया गया है, अगर तुम वाकई सच्चे ईमान वाले हो तो मौत की तमन्ना करो।
مومن کی علامتیں کیا ہیں؟ سچا مومن وہ ہے جو ہر حالت میں خوش رہنا جانتا ہے۔ اگر مصیبت آئے تو وہ صبر میں راحت پاتا ہے، اگر نعمت ملے تو شکر گزار ہو جاتا ہے، بیمار ہو تو جانتا ہے کہ کل صحت ملے گی، اور صحت مند ہو تو سمجھتا ہے کہ کل بیماری بھی آ سکتی ہے۔ جو شخص ہر حال میں راضی ہے وہی حقیقت میں کامیاب ہے۔ اللہ کو پہچاننا آسان ہے یا لوگوں کو؟ اللہ کو پہچاننا آسان ہے مگر لوگوں کو پہچاننا بہت مشکل۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو اس کی نشانیاں دیکھ کر پہچانا جا سکتا ہے۔ مثلاً اگر کسی لکڑی کے ٹکڑے پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوں تو تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ اسے کسی کاریگر نے بنایا ہوگا، مگر انسان کو دیکھ کر تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ظاہری طور پر وہ تمہاری طرح نظر آئے گا، مگر اس کے خیالات، اس کے جذبات، اس کی نیتیں، اس کے ارادے تمہاری سوچ سے بہت مختلف ہو سکتے ہیں۔ آنسو کس چیز کے ہیں؟ میں نے درویشوں سے کہا، تم سب نے مجھ سے بہت سوال کیے، اب میں تم سے ایک سوال پوچھوں، یہ جو تم روتے ہو یہ کس چیز کے آنسو ہیں؟ جواب میں سب خاموش رہے۔ تب میں نے ایک کہانی سنائی۔ ایک درویش برسوں سے حق کی تلاش میں تھا۔ جہاں کہیں بھی کوئی ولی، کوئی مرشد، کوئی صوفی ملتا وہ اس کی خدمت میں لگ جاتا، اس سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتا، مگر اس کی روحانی پیاس نہ بجھی، اس پر معرفت کا دروازہ نہ کھلا۔ پھر ایک دن وہ قبرستان گیا، بہت رویا اور ایک اینٹ کو تکیہ بنا کر سو گیا۔ خواب میں اس کی مراد پوری ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو اس نے وہی اینٹ اپنے سینے سے لگا لی۔ جہاں جاتا اینٹ کو اپنے ساتھ لے جاتا، حمام میں، مسجد میں، بازار میں، مراقبے میں۔ کوئی پوچھتا، یہ اینٹ ہر وقت کیوں ساتھ رکھتے ہو؟ وہ کہتا، یہ اینٹ میری نجات کی نشانی ہے، یہی میرا تکیہ ہوگا جب میں قبر میں جاؤں گا۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا، اگر تم کسی چیز کے ذریعے اللہ کی قربت پالو تو اسے مضبوطی سے تھام لو۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے ایک پیشہ ور نوحہ گر، رونے والا بلایا۔ نوحہ گر نے مرحوم کے متعلق پوچھا، کیا یہ شخص عالم تھا؟ نہیں۔ کیا یہ عبادت گزار تھا؟ نہیں۔ کیا یہ مسکینوں اور یتیموں کی مدد کرتا تھا؟ نہیں۔ نوحہ گر سر جھکا کر رونے لگا اور کہا، یہ شخص حیرت میں آیا، حیرت میں جیا اور حیرانی میں مر گیا۔ اب تم بتاؤ درویشو، تم اینٹ والے درویش ہو یا حیران مرنے والے؟ کیا تم وہ ہو جو حق کے لیے جیتے ہو اور اس پر قائم رہتے ہو، یا تم وہ ہو جو زندگی بیکار گزار دیتے ہو اور آخر میں صرف حیرانی رہ جاتی ہے؟ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ لفظوں کو حاجت نہیں، میرا حال تیرے سامنے عیاں ہے۔ گفتگو کی ضرورت نہیں، میری خاموشی ہی میرا بیان ہے۔ کلام کی حاجت نہیں، میرا سکوت میرا پیغام ہے۔ بیان کی ضرورت نہیں، میرا عشق میری فریاد ہے۔ کونیا میں بہار آئی تھی مگر یہ بہار دھوکہ تھی۔ یہ لوگوں کا ہجوم محض سائے تھے جن میں اخلاص نہیں تھا۔ یہ استقبال کی شاندار تیاریاں محض ایک رسمی مظاہرہ تھی، مگر مولانا رومی جانتے تھے کہ حقیقی محبت شان و شوکت میں نہیں، سادگی میں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کیا، شمس کوئی بادشاہ یا سلطان نہیں، ہم عاشقان حق نبی اکرم کی سنت پر چلنے والے فقیر ہیں۔ ہمارے دل اس طرح کی مصنوعی نمود و نمائش میں گھٹنے لگتے ہیں۔ 3 چمکدار نشانات، ہوا، پانی اور زمین پر بہار کی آمد ہو چکی تھی، مگر ایک چوتھا نشان بھی تھا جو عشق کا نشان تھا۔ یہ مولانا کے دل میں اترا اور ان کے وجود کو حرارت بخش دی۔ مہینوں سے جو چہرہ افسردہ تھا آج کھل اٹھا، کیونکہ سورج، شمس کونیا کی طرف رواں دواں تھا۔ شہر کے گلی کوچوں میں رات کے پھول مہک رہے تھے، سرسبز میدانوں میں زرد جنگلی پھولوں کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ ہر چہرے پر خوشی کی لہر تھی، جیسے کسی مقدس لمحے کا انتظار ہو۔ مولانا رومی کی بے قراری دیکھنے والی تھی۔ کبھی صحن میں آتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی قدم بڑھاتے، کبھی رک جاتے۔ ان کے چہرے پر خوشی کی ایک عجیب سی روشنی تھی۔ انہوں نے اپنے مرید سے کہا، ہم انہیں باغ میں بلوط کے درخت کے نیچے بٹھائیں گے اور پرانی یادوں کو ہنستے ہوئے تازہ کریں گے، کیونکہ مہینوں بعد ان کا مرشد پھر سے مسکرا رہا تھا۔ جو لوگ کبھی مولانا کے خلاف زہر اگلتے، انہیں کافر، ملحد کہتے، وہی آج محبت کا دعویٰ کر رہے تھے۔ انہوں نے شاندار استقبال کی تقریب کا منصوبہ بنایا، مگر مولانا رومی نے اسے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا، وہ کوئی بادشاہ نہیں، ہم حق کے دیوانے، نبی کے مسافر ہیں، ہمیں نہ تمہارے تحفے درکار ہیں نہ تمہاری واہ واہ۔ پونیا کی گلیوں میں ایک نیا نعرہ گونج رہا تھا، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ ہر طرف خوشخبری پھیل گئی۔ مولانا نے قاصد کو انعام میں جو کچھ تھا دے دیا اور اپنے سب سے خوبصورت اشعار سے پکار اٹھے، گلیوں میں پانی کا چھڑکاؤ کرو، باغوں کو خوشخبری دو، بہار کی خوشبو آ رہی ہے، وہ آ رہا ہے، وہ
ہمارا چاند، ہماری جان، ہمارا محبوب آ رہا ہے، راستہ دو، پیچھے ہٹو، ایک طرف ہو جاؤ۔ اس کا چہرہ دمکتا ہے سفید روشنی میں نہایا ہوا، وہ جہاں قدم رکھتا ہے وہاں نور بکھر جاتا ہے۔ وہ آ رہا ہے، وہ۔ یہ خبر بجلی کی طرح کونیا میں پھیل گئی، بازاروں میں صدائیں بلند ہونے لگی، شمس تبریزی آ رہے ہیں، شمس تبریزی آ رہے ہیں، اور پھر شمس پہنچ گئے۔ مولانا رومی ببر شیر کی طرح گرج کر بولے، بالآخر وہ آ گیا، یہ ہجرت ختم ہوئی، یہ انتظار ختم ہوا، یہ رات ختم ہوئی اور سورج طلوع ہو گیا۔ میرے محبوب کا قدم کونیا کی زمین پر پڑ چکا ہے، اب یہ شہر عشق کا شہر بنے گا۔ وہ آیا دوستو، میرا سورج، میرا چاند آیا، وہ جس کا بدن چاندی سا چمکتا ہے، میری آنکھ، میرا کان، میری جان آیا۔ آج میرا دل سرمست ہے، میرا باطن وجد میں ہے، جس کے انتظار میں راتوں کو مرمر کر جیا، جس کے رستے میں گلاب کی مانند میں بچھ گیا، میرا سرو قامت محبوب آیا۔ اللہ کے واسطے دیکھو بہار کس قدر شادمان ہے۔ اے سورج اپنی کرنیں بکھیر، میرا محبوب، میری روشنی، میری طاقت، اب خوب چمکنے کا وقت آ چکا، میرا شیر آیا۔ دکھ مٹ گئے، درد بھول گئے، وہ آیا، وہ جو گلاب کی مانند ہے، وہ جو شہد اور شکر سے زیادہ شیریں ہیں۔ اے شمس تبریزی، اے میری آنکھوں کے نور، آج وہ مجھ سے جدا کر گئے۔ آج جشن برپا ہو، ساز بجائے جائیں، میری زبان، میرا محبوب، میرا چاندی جیسا بدن رکھنے والا آیا۔ پہلے خوشبو آئی، پھر اس کی آمد کی نوید ملی، خوشبو ایسی جیسے برستی بارش جسے خشک زمین اپنی روح میں جذب کر لے۔ پھر افق پر قافلہ نمودار ہوا، وقت تھا شام ڈھلنے کو، اور مکان تھا عشق کی دہلیز پر۔ کونیا کے معززین کے ساتھ مولانا استقبال کے لیے شہر کی حدود میں کھڑے تھے۔ سلطان ولد میرے گھوڑے کی باگ تھامے ہوئے تھا، اور میں سیاہ چادر میں لپٹا، سر جھکائے، رفتہ رفتہ گھوڑے کی پشت پر آگے بڑھ رہا تھا۔ گھوڑے سے اترا مگر میرے قدموں کو پر لگ جانے چاہیے تھے جب میرا دوست انتظار کر رہا تھا۔ جیسے جیسے میں قریب ہوا، عاشق کے دل کی دھڑکنوں کی صدا مجھے سنائی دینے لگی۔ آسمان کے ستارے تک اس منظر کی تعظیم میں جھکنے کو تھے۔ ہم گلے ملے، یوں جیسے دو بچھڑے دریا مل جائیں۔ آنکھوں سے اشک رواں ہوئے اور ہم نے ایک دوسرے کے آنسو پونچھے۔ اس کی خوشبو کو محسوس کیا، اس کی سسکیوں کو ایسے سنا جیسے اپنے جگر کا خون پیتا ہوں۔ ہم ایک دوسرے سے الگ ہونے پر تیار نہ تھے۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی، سراب ایک فریب ہے، پانی حقیقت کا سمندر ہے۔ اس نے جواب میں کہا، میں اس گلاب کی مانند ہوں جو اپنی مٹی کے انتظار میں تھا، میں اس بارش کی آرزو میں تھا، میں اپنے سورج کی شدت سے طلب رکھتا تھا۔ یہ منظر پہلے بھی دیکھا گیا تھا۔ برسوں پہلے کونیا کے بازار میں نے پہلی بار مولانا کو دیکھا اور اس کے گھوڑے کی لگام تھام لی تھی۔ آج وہی لگام مولانا رومی کے ہاتھ میں تھی۔ دو سمندر ایک بار پھر مل رہے تھے۔ یہ دوسرا مرج البحرین تھا۔ اس مقدس لمحے میں حافظ قرآن تلاوت کر رہے تھے، مرید سما میں محو تھے، نئے اور دف کی آوازیں آسمان تک پہنچ رہی تھیں۔ مولانا نے مجھے گھوڑے سے اترنے میں مدد دی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ چوم کر محبت میں ڈوب کر پھر سے گلے لگ گئے۔ پھر خاموشی طاری ہو گئی، ہم حال کی زبان میں گفتگو کرنے لگے۔ مولانا نے سلطان ولد کی خدمات کو سراہا۔ میں نے کہا، میرے پاس اللہ کے عطا کردہ دو خزانے ہیں، ایک میرا سر، دوسرا میرا راز۔ میرا سر میں نے اخلاص کے ساتھ تیرے رستے میں قربان کیا، اور میرا راز میں نے ولد کے حوالے کر دیا۔ اگر سلطان ولد کی زندگی نوح علیہ السلام جتنی طویل بھی ہوتی اور وہ اپنی پوری زندگی عبادت اور ریاضت میں بھی گزارتا، تب بھی اسے وہ معرفت نہ ملتی جو اس سفر میں اسے عطا ہوئی۔ یہ ملاقات ایک نئے سفر کی ابتدا تھی۔ سفر کے دوران سلطان ولد نے میری بے حد خدمت کی، مجھے اپنی جان کی طرح محفوظ رکھا اور میرے لیے ہر ممکن سہولت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ میں نے بھی اپنی صحبت سے اس کا دل روشن کیا اور اپنے راز اس کے سپرد کیے۔ اے میرے بیٹے، مولانا کی آنکھ کا تارا، میرے دل کا گلزار، تم میرے لیے بیٹے کی مانند ہو۔ وقت آئے گا میں چلا جاؤں گا، وقت آئے گا تمہارا والد بھی چلا جائے گا، مگر میری یہ نصیحتیں تم ہمیشہ اپنے دل پر لکھ کے رکھ لینا۔ جھوٹے شخص میں وفا نہیں ہوتی، بد کردار کی توبہ دیر پا نہیں ہوتی،
बखील की वफादारी हमेशा कमज़ोर होती है। मुनाफिक लोगों को अपना दुश्मन जानो, उनसे और उनके कामों से बचो। दीन को पाक और शफाफ रखने के लिए हमेशा हलाल रोज़ी खाओ, क्योंकि हराम रोज़ी खाने वाले का दिल उसके जिस्म के अंदर ही मर जाता है। ये ना जानना कि मुसीबत कहाँ से आई सबसे बड़ी मुसीबत है। मैंने देखा कि तुम्हें किताब लिखने का शौक है, मगर जब तक मैं जिंदा हूं एक लफ्ज भी ना लिखना। मेरे बाद जब कलम हाथ में लो, और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी वही रुक गई है और तुम्हारा कलम बेजान हो गया है, तो इस हकीक की अंगूठी को अपने हाथ में पहन लेना। इसका नाम इब्तदा है और तुम्हारी किताब का नाम इब्तदा नामा होना चाहिए। सुल्तान वलद ने कहा, पीरो मुर्शिद, मेरे लिए कुछ और नसीहतें फरमाएं जो मेरी किताब के लिए चिराग का काम दें। मैंने कहा, है मेरे बेटे, ये नसीहतें तुम्हारे लिए रोशनी हों। दरवेशों की तरबियत नेक बेटी की परवरिश की तरह है। उनकी सोहबत, उनके ताल्लुकात पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि गलत सोहबत पाक ज़मीन में जहरीला बीज बोने के मुतरादिफ है। दिल के मामलात में खुद को फौरन न झोंक देना, वरना तुम गहराइयों में डूब जाओगे। रोशन ज़मीर लोग हुक्मरानों के ग़ुलाम नहीं होते। अगर लोग पुरज़्म हों तो तकदीर को शिकस्त दे सकते हैं, और जब इरादा मजबूत हो तो तवानाई बेदार हो जाती है। रोशन ज़मीर लोग रिवायात के सांचे में खुद को नहीं डालते। अगर तुम कोई बुरा काम करते हो और तुम्हें डर लगता है कि लोग इसे जान लेंगे, तो समझो कि इस बुराई में कुछ भलाई है। अगर तुम कोई नेकी करते हो और चाहते हो कि लोग इसे जानें, तो समझो कि इस नेकी में कुछ बुराई है। आँखें और कान बैरूनी डाकू हैं, जबकि एहसासात, ख्वाहिशें और नज़रियात अंदरूनी डाकू हैं। मगर अगर अंदरूनी अकल बेदार हो और चौकस हो, तो यही डाकू तुम्हारे घर के मुहाफ़िज़ बन जाते हैं। खामोश और पेचीदा लोगों से अपने ख्यालात न बांटो। हसास और ख़ुद पसंद लोगों से बात करते वक्त एहतियात करो। जो दूसरों पर अंधा एतबार करता है, वो देखेगा कि सब लोग सच्चे नहीं होते, मगर वो खुद सच्चा रहेगा। जो हर एक पे शक करता है, वो देखेगा कि सब लोग धोखाबाज नहीं होते, मगर वो खुद हमेशा दगाबाज रहेगा। अगर तुम नेकी करो और उसका फौरी बदला ना पाओ, तो ये उस कद्दू की मानंद है जो जंगल में उगता है, जिसे कोई नहीं देखता, मगर वो नशोनुमा पाता रहता है। अगर तुम बदी करो और उसका फौरी नुकसान ना देखो, तो ये मौसम बहार में गिरी बर्फ़ की मानंद है, जो आखिरकार या तो पिघल जाएगी या बुखारात बनकर उड़ेगी। जुस्तजू नेकी और इंसाफ का तकाजा है, लेकिन दुनियादार लोग जुस्तजू को सिर्फ माली मसाइल हल करने का जरिया समझते हैं। सादगी दुनियावी मालो मता से बेनियाजी है, लेकिन दुनियादार लोग सादगी को अपने बुख्ल को छुपाने का जरिया बनाते हैं। यूँ रूहानी ज़िंदगी के असूल दुनियादार लोगों के लिए दुनियावी फ़ायदे का जरिया बन जाते हैं। अफसोस, जो लोग एतराज़ और तोहमत लगाते हैं, वो बादलों की मानंद होते हैं, जो कुछ वक्त के लिए सूरज को ढांप सकते हैं मगर जल्द ही छट जाते हैं। जो लोग चापलूसी और खुशामद करते हैं, वो उस खंजर की मानंद हैं जो नज़र नहीं आता मगर दिल में उतर कर रहता है। सुल्तान वलद ने मेरे ये तमाम अल्फाज दिल पर सब्त कर लिए, और यही नसीहतें उसकी राह का चिराग बने। मौलाना और मैं एक साथ दरगाह में दाखिल हुए। हमने एक दूसरे को इस कदर याद किया था कि लम्हों तक कुछ बोले बगैर एक दूसरे की खुशबू को महसूस करते रहे। हम वहीं से दोबारा आगाज़ कर रहे थे जहाँ छोड़ा था, मोहब्बत के जाम में डूबकर, खलवत में हकीकतों के दर खोलकर और राजों के समंदर में परवाज़ करके। मौलाना के लिए काफ़ी ना था कि वो बस एक रोशनी रहें जो सिर्फ कूनिया में पहचानी जाए। वो महज एक बहता हुआ दरिया न थे, वो एक समंदर बनने के काबिल थे। और मेरा आज़म यही था कि अपने महबूब की रोशनी को दुनिया में फैलाऊंगा, उसे एक बेकरां समंदर में बदल दूंगा। मगर लोगों के लिए यही मौलाना काफ़ी थे, जैसे वो थे एक जानी पहचानी शख्सियत, एक मुरव्वजा मजहबी राहबर। लेकिन मौलाना खुद मौलाना से खुश ना थे। क्या तुम मस्जिद में महज लोगों के दिल नहीं बल्कि उनके कान ही महसूस कर रहे हो? मौलाना ने जवाब दिया, लोगों को इल्म अता करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर बताओ, बरसों से वाज कह रहे हो, लोगों में क्या बदला? ये हम नहीं जान सकते। फिर कौन जानेगा? तुम लोगों को नहीं जानते मौलाना। कल अपना वाज बदलो, नरम कहानियां छोड़ दो। कल तुम सिर्फ जहन्नम के बारे में बात करो, दर्दनाक लफ्ज़ कहो, लोगों के खौफ को जगाओ, हाकिमों को ललकारो, अपनी ज़बान को तेज़ करो, अपनी बातों को तलवार बना दो। तुम देखोगे कि मस्जिद नमाजियों से भरी होगी, क्योंकि ये कौम रोने वाले और रुलाने वाले खुतबे पसंद करती है। मगर हकीकत ये है कि ये लोग रोना भी ठीक से नहीं जानते।
फिर अगले दिन सिर्फ जन्नत का जिक्र करना, नरमी से बात करना। देखना ये मजमा छट जाएगा। लोग जन्नत को मानते हैं मगर उसे हासिल करने की आरजू किसी में नहीं। वो कहेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर इस वाज को छोड़ दो और आओ मैं तुम्हें वाजों का वाज सुनाऊं। अगर दिल की किताब ना पढ़ी जाए तो इंसान कभी हक के बुलंद तरीन मकाम तक नहीं पहुंच सकता। आगे कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह है। दुनिया में कभी कुछ और था भी नहीं, सिर्फ आंख ही धोखा खाती रही। अक्ल ने समझा कि वो सब कुछ जान लेगा मगर वो खुद को भी ना जान पाया। अगर दिल की कलम ना लिखे तो अल्फाज महज एक खाली सजावट रह जाते हैं। खाली अल्फाज की जगह तन्हाई ले लेती है। इश्क का तजर्बा मौत को कबूल किए बगैर मुमकिन नहीं। इश्क और मौत दरअसल एक ही चीज नहीं। तब फिर वो कौन सा लफ्ज है जिसका इंतजार था? यही तो राज है। लफ्ज खत्म हुआ, अब सिर्फ हाल बाकी है। हम अल्लाह से कभी दूर ही ना थे, चाहे ये दुनिया हो या जन्नत। हम हर लम्हा अपने हाल में उसके करीब ही थे। मैंने मौलाना से कहा, मेरे बाद तुम लोगों को एक नई नज़र से देखोगे और यही नज़र तुम्हें दिलों में बड़ा बनाएगी। 4 दीवारें, 4 दरवाजे, कूनियाँ तुम्हारी हद नहीं। तुम्हारा मजमा और तुम्हारी उम्मत कहीं ज्यादा वसी है। जिहालत, वो इल्म जो तुम्हें तुमसे दूर ना करे, उस इल्म से 100 गुना बेहतर है। सुबह की नमाज अदा की, कुरान पढ़ रहा था कि मौलाना अंदर दाखिल हुए। उन्होंने पूछा, आज सुबह के लिए क्या नज़र है? पहले मैं हर सुबह असरारनामा के साथ दिन का आगाज करता था। आखिर तुम हमेशा किताबों की बात क्यों करते हो? हमेशा दूसरों के लफ्ज क्यों दोहराते हो? क्या तुम्हारे अपने अल्फाज नहीं? मैंने जवाब दिया, अच्छा तो क्या तुम आरफों के सुल्तान को जानते हो? वो कौन? मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी। शम्स तबरेज़ी मुस्कुराए, सर झटक कर बोले, छोड़ो, जो वो कह चुके वो कह चुके। वो अपनी दानिश मुर्दों से लेता है, मैं अपनी हिकमत उस ज़ात से लेता हूँ जो कभी नहीं मरती। आरिफ वही होता है जो अपने महबूब के जिक्र से पीछे न हटे, उसकी दोस्ती से कभी सैर ना हो। यकीन का दस्तरखान ही सबसे शीरीन निवाला है। हकीकी इल्म 3 चीज़ों से हासिल होता है, जिक्र करने वाली ज़बान, शुक्र करने वाला दिल और सब्र करने वाला जिस्म। इल्म के बगैर जिस्म प्यासे शहर की मानंद है। आखिरकार महज एक खुश्क कालिब जिसको ज़ब्त नफ्स, इखलाक, रूहानी रियाजत और जहद मुसलसल से सैराब और मुज़य्यन करना चाहिए। शम्स मुझे अपने आरफाना नूर से रूशनास करा। मैं नूर कहता हूँ, तुम मट्टी समझते हो। मैं तुम्हें इश्क की दावत देता हूँ, तुम मुझे आग में झोंक देते हो। हालांकि मेरी तकदीर में जलना लिखा है, मगर अगर तुम्हारे जलाए गए छोटे शोलों के बदले बड़े अलाव में झुलसना पड़े तो मैं क्यों जलूं? मैं इश्क कहता हूँ, तुम कहते हो इश्क हो तो ऐसा हो। मैं दिल की बात करता हूँ, तुम सायों के पीछे भाग रहे हो। फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, बस कर मेरे दिल, मुझे एक ऐसा गम चाहिए जिसे मैं हजारों राहतों के बदले भी न दूं। फिर शम्स ने मौलाना की आंखों में झांका, गोया दिल की गहराई से पूछा, अब बताओ, क्या तो मेरे लिए एक गम हो? दोस्ती गुलाब होना है, पत्तियों के साथ भी, कांटों के साथ भी। मौलाना, तुम एक गुलाब हो और तुम्हारे गुलाब होने की हकीकत जानने के लिए मैं दियार दियार घूमता हूँ, तुम्हारे कदमों में आकर बैठता हूँ। क्या तुम्हें बताऊं कि तुम क्यों गुलाब हो? मौलाना ने मुस्कुराते हुए कहा, बेहद खुशी होगी, सुनाओ। मैंने एक दरवेश की हिकायत सुनाई। एक दरवेश खुरासान से अनातोलिया आता है। मकसद है कि किसी खानकाह में जगह पाए। सफ़र के दौरान वो सिवास के करीब एक खानकाह के दरवाजे पर दस्तक देता है। खानकाह के अंदर पीर अपने मुरीदों के साथ महवे गुफ्तगू थे। दरवाज़ा खोलने के लिए एक मुरीद आगे बढ़ा तो पीर ने कहा, रुक जाओ, दरवाजे पर एक दरवेश है, उसकी दस्तक और आवाज़ बता रही है कि वो क्या चाहता है। मैं उसका जवाब देने के लिए तुम्हें एक पैगाम देता हूँ। पीर ने एक गिलास मंगवाया और उसे पानी से लबालब भर दिया, इतना कि एक कतरा भी मजीद डाला जाता तो छलक जाता। फिर कहा, यह गिलास दरवाजे पर खड़े मेहमान को दो, वो मेरा इशारा समझ जाएगा। मुरीद ने दरवाज़ा खोला, गिलास दिया, दरवेश मुस्कुरा दिया, वो इशारा समझ गया। पैगाम ये था, बेटा, हमारी खानकाह पहले ही मुरीदों से भरी हुई है। अगर हम तुम्हें शामिल करेंगे तो जगह तंग पड़ जाएगी। बेहतर है कि तुम कोई और खानकाह ढूंढ लो। दरवेश ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बाग से गुलाब की पत्ती तोड़ी और पानी के ऊपर रख दी। हैरत अंगेज तौर पर पानी नहीं छलका। ये गिलास शेख के पास ले जाओ, वो मेरा पैगाम समझ जाएगा।
मुरीद गिलास लेकर पीर के पास वापस गया। पीर ने जब पानी पर गुलाब की पत्ती को तैरता देखा तो मुस्कुराकर बोला, समझ गया, दरवेश कह रहा है मुझे कबूल कर लीजिए, मैं गुलाब की पत्ती हूँ, मैं बोझ नहीं डालूंगा बल्कि बोझ हल्का करूँगा। मुझे अपनी हिकमत के चश्मे से सैराब कीजिए, मुझे अपनी खिदमत के पानी से निहाल कीजिए। फिर मैंने मौलाना से कहा, सच्चा दोस्त वही है जो अल्लाह की मानद राजदार हो, जो दोस्त की खामियों को बर्दाश्त करे, जो उसकी खताओं से न बिगड़े, जो वफादार रहे, जो एतराज़ न करे, जो बेगर्ज मोहब्बत करे। और फिर मैंने मौलाना को एक राज की तरह परवान चढ़ाया, रातों के मराकबों में उन्हें पकाया, उन्हें इश्क की आग में जलाया। पहले ही वो तैयार थे, मगर जब मुझसे मिले तो मेरी आग ने उन्हें मजीद बुलंद कर दिया। और फिर मौलाना ने एक गज़ल में ये कैफियत यूं बयान की, सहर के वक्त आसमान पर चमकता चांद नजर आया, नीचे आया और मेरी तरफ देखने लगा। चांद ने मुझे अपने पैरों में समेट लिया और आसमान की वुस्सतों में उड़ा ले गया। मैंने खुद को देखा मगर खुद को ना पाया, क्योंकि मेरा जिस्म नूर में ढल चुका था। मैंने आलम रूहानियत में कदम रखा मगर वहाँ भी उस चांद के सिवा कुछ ना पाया। फिर एक और मौके पर मौलाना ने अपनी तब्दीली को यूं लिखा, इश्क ने मुझे मदहोश कर दिया, मैंने हाथ उठा दिए, मैं बेखुद हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक खट्टी अंगूर की बेल था मगर अब मैं एक रसीला अंगूर बन चुका हूँ। अब मैं अपने चेहरे पर खटास नहीं ला सकता, मैं वो नहीं जो पहले था, मुझे इश्क ने कुछ और बना दिया। तब मैंने मौलाना से कहा, जो भी मालो दौलत तुम्हारे पास है उसे इश्क के नाम पर, इश्क की जान पर निछावर कर दो। मौलाना हैरत में पड़ गए, मैं समझा नहीं। मैंने कहा, हज़रत इब्राहीम की कहानी सुनो गौर से। अल्लाह ताला ने जब हज़रत इब्राहीम को नमरूद की आग से निजात दी तो उन्होंने शुक्राने के तौर पर 1000 मेंढे, 300 बैल और 100 ऊँट कुर्बान किए। इससे पहले किसी ने इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी थी और न किसी ने ऐसी सखावत देखी थी। जब लोगों ने पूछा कि आपने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी, तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, मैं तो अपना जान और माल सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकता हूँ। अगर मैंने अपना माल कुर्बान कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो कुछ मेरे पास है वो सब अल्लाह का है, मैंने अल्लाह को ही लौटाया है। अगर मेरा बेटा होता और अल्लाह उसे कुर्बान करने को कहता तो मैं उसकी भी कुर्बानी दे देता। देखो मौलाना, इश्क का तकाजा यही है कि आशिक अपनी सबसे कीमती शय महबूब पर निछावर कर दे। फिर मैंने एक और हिकायत सुनाई। शेख बायजीद बस्तामी के मुरीद एक दिन उनके पास आए और शिकायत की, हज़रत शैतान हमारा ईमान चुरा लेता है। शेख ने शैतान को बुलाया और उससे पूछा, ये क्या मामला है। शैतान बोला, हज़रत मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता, मैं तो अल्लाह से इतना डरता हूँ कि किसी पर ज़बरदस्ती करने की जुर्रत नहीं कर सकता। मैं तो बस वो ईमान चुन लेता हूँ जो लोग खुद ही किसी मामूली चीज़ के बदले में छोड़ देते हैं। यानी हकीकत ये है कि शैतान इंसानों से कुछ छीनता नहीं, बल्कि जो कुछ वो खुद छोड़ देते हैं सिर्फ उसे उठा लेता है। ये सुनकर मुरीद हैरान हुए। फिर मैंने मौलाना से कहा, शैतान और इंसान में सब कुछ यकसां है सिवाय एक चीज़ के। मौलाना ने हैरत से पूछा, वो क्या। मैंने कहा, इश्क। शैतान के पास सब कुछ था मगर इश्क न था, इसलिए वो आदम को बर्दाश्त न कर सका, क्योंकि इश्क सिर्फ इंसानों के लिए मखसूस है। फिर मैंने हज़रत जिब्राइल का किस्सा सुनाया। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल से फरमाया, ऐ जिब्राइल, अगर मैं तुम्हें इंसान बना देता तो तुम मेरी इबादत कैसे करते। हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया, अल्लाह तो जानता है जो कुछ हो चुका, जो हो रहा है, जो होगा, सब तेरे इल्म में है। तो ये भी जानता है कि मैं इंसान होता तो कैसे इबादत करता। अल्लाह ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बंदों को ये बात सुनाओ। हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया, अल्लाह अगर मैं आदमी होता तो 3 चीज़ों को लाजिम पकड़ता, प्यासों को पानी पिलाता, लोगों के ऐबों को छुपाता और मोहताजों की मदद करता। अल्लाह ने फरमाया, इसीलिए मैंने तुम्हें अंबिया के पास वही ले जाने वाला बनाया। फिर मैंने मौलाना से कहा, शैतान में इंसानों जैसी बहुत सी सिफ़ात मौजूद हैं मगर एक चीज़ उसमें नहीं। मौलाना ने फिर पूछा, वो क्या। मैंने कहा, इश्क। शैतान कभी इश्क को ना समझ सका, इसलिए वो आदमी से जलता है। फिर मैंने हज़रत आदम का किस्सा सुनाया कि अल्लाह ने आदम को जन्नत से क्यों निकाला। मैंने कहा, शैतान तो कभी जन्नत में गया ही नहीं था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ने खुद ही उसकी ज़बान को सांप की नोक पर रख दिया। मौलाना हैरत से सुन रहे थे। मैंने मज़ीद वजाहत की, ये बहुत बारीक हिकमत है। सांप खुद शैतान नहीं था मगर शैतान की ज़बान उस पर थी। असल में इंसान को गुमराह करने वाली चीज़ भी हमारी ज़बान ही है। ये ज़बान कभी जन्नत में ले जाती है और कभी दोज़ख में धकेल देती है। मौलाना सोच में पड़ गए। फिर मैंने कहा, शैतान कभी एक बुलंद मर्तबा फरिश्ता था, उसका नाम हारिस था, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले के मानों में है।
اس نے زمین کے ہر گوشے میں سجدہ کیا، مگر جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تو غرور میں آ گیا۔ وہ سمجھا کہ اس کی ساری عبادت اسے خاص بناتی ہے، مگر یہی غرور اس کے زوال کا سبب بن گیا۔ پھر میں نے مولانا کو ایک اور بات کہی۔ شیطان نے جب مہلت مانگی تو اللہ نے قیامت تک اسے مہلت دے دی، مگر دیکھو اس نے کہا میں انسانوں کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے ان پر حملہ آور ہوں گا۔ مگر غور کرو مولانا، اس نے اوپر اور نیچے کا ذکر نہیں کیا۔ یہ سن کر مولانا نے فوراً کہا کیونکہ جو سجدے میں گرتا ہے اس پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ میں نے مسکرا کر کہا ہاں، جو اللہ کی طرف جھک جاتا ہے اس پر شیطان کبھی قابو نہیں پا سکتا۔ مولانا خوش ہو گئے، ان کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا اب تمہیں عشق کے اس راز کو سمجھنا ہوگا۔ یہ سن کر مولانا کے مریدوں کی محفل میں ایک سناٹا چھا گیا۔ سب نظریں مجھ پر جمی تھیں، لیکن میں جانتا تھا کہ حقیقت کے سمندر میں ڈوبنے کے لیے سوالات کی کسوٹی پر سب کچھ پرکھنا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے بلند آواز میں کہا اگر تم کہتے ہو کہ اللہ بندوں کے ساتھ ہے تو یہ ہونا کیسا ہے؟ کیا وہ جسم کی طرح موجود ہے یا محض علم اور فطرت کی صورت میں؟ مجھے دیکھ کر شیخ ذرا پریشان ہوئے، مگر نرمی سے بولے اللہ علم کے ذریعے بندوں کے ساتھ ہے، وہ ان کے حال سے باخبر ہے، ان کے ہر کام کو جانتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا لیکن علم ذات سے جدا نہیں ہوتا۔ جب تم کہتے ہو کہ وہ علم کے ذریعے ہمارے ساتھ ہے تو گویا تم نے مان لیا کہ اللہ خود ہی ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اس کا علم اور ذات ایک ہیں۔ محفل میں ایک سرگوشی کی لہر دوڑ گئی، جیسے کسی نے ایسی بات کہہ دی ہو جسے کہنے کی کسی میں جرت نہ تھی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کسی محدود جگہ میں مقید ہو سکتا ہے؟ کیا وہ تمہارے تصور کی قید میں آ سکتا ہے؟ اگر اللہ کو محدود کر دیا جائے تو وہ اللہ ہی نہ رہے۔ شیخ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے یہ تو پرانے سوالات ہیں جن پر صدیوں سے بحث ہو رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا حقائق پرانے نہیں ہوتے، ہر دن ہر لمحہ وہ تازہ رہتے ہیں۔ یہ سن کر شیخ مزید کوئی جواب نہ دے سکے، وہ جھک کر احتراماً میرے ہاتھ چومنے لگے۔ محفل میں موجود لوگ حیران تھے کہ جو شخص ابھی تک حق و باطل پر سوال کھڑے کر رہا تھا اب خود جھک گیا ہے۔ میں نے مولانا کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، گویا میں نے ان کے دل کی بات کہہ دی ہو۔ میں نے مزید کہا علم و معرفت کے دروازے اس وقت تک نہیں کھلتے جب تک آدمی حقیقت کو دل سے نہ تلاش کریں۔ صرف کتابیں پڑھ لینے سے حقیقت معلوم نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی اپنے باطن میں اس حقیقت کو محسوس نہ کرے۔ مولانا نے مجھ سے کہا تمہاری باتیں آگ کی طرح دلوں میں اتر جاتی ہیں، مگر سب کے لیے نہیں۔ تمہارے الفاظ سننے کے لیے وہ کان چاہیے جو خود کو پاک کر چکے ہوں، وہ دل چاہیے جو دنیا کی محبت سے آزاد ہو چکے ہوں۔ میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا مولانا یہی تو میرا شوق ہے، ہر دل کو ایسا بنانے کی کوشش کرنا۔ میری کیمیا کو الٹ پلٹ کر دینے والی خاتون۔ میں نے عشق کا ذائقہ مولانا سے سیکھا اور اس کی طغیانی کیمیا خاتون سے۔ کونیا ویسا ہی تھا جیسا میں نے چھوڑا تھا، طوفان سے پہلے کی خاموشی میں لپٹا ہوا، بظاہر پرسکون، مگر یہ سکون بے دلی کا، محض مولانا کی خاطر، یوں جیسے کہہ رہا ہو شمس کو ایک اور موقع دے دو۔ عوام اور علماء کا رویہ میرے لیے ایسا تھا جیسے کسی غلام کو شیر کے سامنے پھینک دیا جائے۔ ان کا محتاط طرز عمل اور مجھے خطرناک دھماکہ خیز بارود سمجھنا میری نظر میں کچھ حیثیت نہ رکھتا تھا۔ عشق اگر بارود کو آگ سے چومنے کا نام ہے تو باخدا میں پھٹ بھی جاؤں، بکھر بھی جاؤں، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں مولانا کے لیے آیا تھا، کونیا کے لیے نہیں۔ اگر کوئی کہتا کہ تبریز واپس چلو، تمہارے والد قبر سے جی اٹھیں گے، تو میں ایک قدم بھی نہ بڑھاتا۔ تم مجھ سے کوئی سمجھوتا چاہو، یہ نہیں ہوگا، بلکہ شاید میں پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو جاؤں۔ میرے ساتھ جینا آسان نہیں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ شمس کل جو تھا وہی آج ہے اور کل بھی ویسا ہی رہے گا۔ مولانا اس بار مجھے ہمیشہ کے لیے کونیا میں روکنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ مجھے اپنے پاس بسانا چاہتے تھے، ایک خاندان میں جکڑ کر، تاکہ میں کونیا میں مستقل رہ جاؤں۔ مولانا کونیا اور اس کے لوگوں کو خوب جانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ لوگ پھر میرے بارے میں چہمگوئیاں کریں گے، کیونکہ دنیا ناپختہ ذہنوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ لوگ اس روحانی مجلس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ صرف ظاہر کو دیکھنے والے ہیں، یہ صرف مولانا کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر شمس چلا جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا اور مولانا پھر ان کے ساتھ ہوں گے، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ میں مولانا کے لیے جان کی طرح، روح کی طرح لازم تھا۔ جیسے روح کو جسم سے نکال دیا جائے ویسے ہی ہمیں جدا کرنا تھا، مگر یہ حقیقت کس کو سمجھائی جاتی؟
कौन इसे सुनने को तैयार होता। मौलाना इस खौफ में थे कि अगर मैं चला गया तो अब कभी लौट कर नहीं आऊँगा। मौलाना के पास एक रूहानी तौर पर पाकीज़ा, नेक सीरत और बातनी हुस्न से मुज़य्यन लड़की थी जिसका नाम कीमिया था। वो मौलाना की परवरिश में पली बढ़ी थी और उन्हें अपनी बेटियों जैसी अजीज़ थी। मौलाना ने सोचा, अगर मेरी शादी कीमिया से हो जाए तो मैं कूनिया में हमेशा के लिए ठहर जाऊंगा। मगर इस फैसले के कई पहलू थे और मौलाना कई अंदेशों में घिरे हुए थे। पहला, क्या मैं इस निकाह को कबूल करूंगा? दूसरा, शम्स उम्र रसीदा था और कीमिया जवान। तीसरा, मौलाना के बेटे अलाउद्दीन कीमिया से यकतरफा मोहब्बत करते थे। अगर ये रिश्ता हो गया तो मौलाना का बेटा उनका दुश्मन भी बन सकता था। यही नहीं बल्कि कूनिया के चंद बास और उलमा अपने बेटों के लिए भी कीमिया का रिश्ता मांग चुके थे। मौलाना ने हर पहलू पर गौर किया, हर इम्कान को परखा और आखिरकार अपनी अहलिया कैरा खातून और बेटे सुल्तान वलद से मशवरा किया। कैरा खातून, जो शुरू से मुझसे सर्द मेहरी बरत रही थी और जिनके बारे में सबको यकीन था कि वो इस रिश्ते की मुखालफत करेंगी, हैरत अंगेज़ तौर पर उन्होंने इस तजवीज़ की हिमायत की। सुल्तान वलद ने कहा, बाबा जान, आप सबसे बेहतर जानते हैं। अगर आपकी फ़िक्र अलाउद्दीन है तो आप बेफिक्र रहें, मैं उसे मना लूँगा और उसका रद्द अमल रोक दूँगा। लेकिन फ़ैसला करने से पहले हमें कीमिया की राय भी मालूम करना होगी। मौलाना की पहली ज़ौजा गौहर खातून के इंतकाल के बाद वो तवील अरसे तक दोबारा शादी के लिए आमादा ना हुए, मगर उनके चाहने वालों ने उन्हें कैरा खातून से ब्याह दिया, जो पहले एक ईसाई थी और शौहर के इंतकाल के बाद 3 बच्चों के साथ बेवा हो गई थी। मौलाना ने उनके बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह पाला, बल्कि बाज़ औक़ात उन पर ज़्यादा शफ़क़त की। जब उन्होंने अपनी सौतेली बेटी कीमिया के साथ मेरा निकाह करने का इरादा ज़ाहिर किया तो कीमिया खामोश रही और कहा, मेरे बाबा मुझे मुझसे बेहतर जानते हैं। कीमिया जैसी रूहानी तरबियत याफ्ता लड़की के लिए इस फैसले को कबूल करना कोई मसला न था, लेकिन निकाह से हिचकिचाने वाला सिर्फ अलाउद्दीन नहीं था, मैं भी इसके लिए ज़्यादा मायल नहीं था। अब असल मसला मुझे इस निकाह पर आमादा करना था। मैं जो ज़िंदगी भर शादी के ख्याल से दूर रहा, मेरी उम्र 68 बरस हो चुकी थी और मैंने कभी औरत की तरफ निगाह नहीं की थी। मौलाना भी जानते थे कि शादी मेरी तरजीहात में नहीं है और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। एक दिन गुफ्तगू के दौरान मौलाना ने इस मसले को छेड़ दिया, कीमिया खातून कितनी अच्छी रफ़ीक हयात होगी, है ना शम्स? किसके लिए? ज़ाहिर है तुम्हारे लिए। तुम मुझे थोड़ा बहुत जानते हो, इस उम्र तक मैंने कभी औरत का ख्याल तक नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अल्लाह ने औरत को मर्द का जोड़ा बनाया है। औरत बाज़ के लिए जोड़ा होती है और बाज़ के लिए फितना। मौलाना ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मेरे अजीज़, कीमिया जवान है और मैं एक ऐसा फ़कीर हूँ जिसने शहवत से किनारा कशी इख्तियार कर रखी है। मैं तुमसे वही कहूँगा जो हज़रत ईसा ने मगदाला की मरियम से कहा था। वो हज़रत ईसा से मोहब्बत करती थी और निकाह की ख्वाहिशमंद थी, मगर हज़रत ईसा ने फरमाया, निकाह जिस्मानी अमल है, बेकार इंतज़ार ना करो क्योंकि मुझ में जिस्म बाकी नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम तन्हा न रहो, कोई तुम्हारी देखभाल करे, तुम्हारी सोहबत का लुत्फ़ उठाए। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को रूहानी फैज़ अता करो और वो तुम्हारे साथ कल्बी ताल्लुक़ इस्तवार करे। मौलाना की सबसे बड़ी महारत ये थी कि वो जो कह न सकते थे वो भी मुझे सुनवा देते थे। ऐ शम्स, तुम मेरे लिए सिर्फ़ एक दोस्त नहीं, तुम मुझसे बढ़कर हो, मेरी दुनिया से मावरा मोहब्बत हो। मेरा दिल तुम्हारी जुदाई के खौफ से लरसता है। अगर तुम फिर चले गए तो मैं दोबारा इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मेरा दिल पहले ही थकन से चूर है। अगर तुमने फिर मुझे जिलावतनी में छोड़ा तो मैं टूट जाऊँगा। कीमिया को अपनी जंजीर न समझो, बल्कि मेरे दिल की बेकरारी का मुदावा समझो। कीमिया तुम्हारे दिल से बंधी हो ताकि मैं इस खौफ से आज़ाद हो सकूं कि तुम चले जाओगे। मेरी मोहब्बत को देखो, इस निकाह के लिए हाँ कर दो। मैंने मौलाना के दर्द को महसूस किया। मैंने वो अल्फाज पढ़े जो उन्होंने कहे नहीं थे, मगर उनके दिल में सांप की तरह लौट रहे थे। मैंने कहा, अगर कीमिया भी राज़ी है तो मैं भी राज़ी हूँ। अगर तुम मेरे लिए हर तूफ़ान का सामना करने पर आमादा हो तो फिर जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मैंने फ़ैसला किया कि पहले ख़ुद कीमिया से बात करूं। अगरचे मैं सालों से मौलाना की दरगाह में था, मगर मैंने कीमिया को कभी नहीं देखा था। मुझे उसकी नीयत और मेरे बारे में उसके ख्यालात जानने थे, क्योंकि मेरे दिल में मौजूद बेचैनी को महज वही अपने जवाबात से दूर कर सकती थी। मैंने उससे कहा, मेरे मुतालिक तुम्हें क्या बताया गया है? मैं जानता हूँ, मैं आँखों और दिलों को पढ़ने वाला हूँ। मैं दूसरों की बातों पर नहीं चलती। मेरे कान बाहर की दुनिया के लिए बंद हैं। तुम्हारा जवाब भी मुझे पसंद आया। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो बिला झिझक पूछो।
तुम ने अब तक शादी क्यों नहीं की? क्या तुम्हारे अंदर कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना नहीं जागी? मैंने जवाब दिया, जवानी में मैंने तकरीबन हर रोज़ रोज़ा रखा ताकि मेरे अंदर पैदा होने वाली नफसानी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाएं। मैंने इसमें कामयाबी हासिल कर ली। मैंने अपनी शहवत को मार डाला। मुझे किसी भी मखलूक के लिए जिस्मानी रग़बत नहीं। मैं मोहब्बत को हवस नहीं समझता और मैं मोहब्बत को शहवत से पर्दा नहीं करवाता। इसलिए मैं 68 साल की उम्र तक गैर शादीशुदा हूँ। तुम औरतों के बारे में क्या सोचते हो? मैं औरतों से नफ़रत नहीं करता, ना ही उन्हें फितना समझता हूँ। वो अल्लाह की अमानत हैं, लेकिन मैंने दुनिया को तर्क कर दिया है। न औरत, न खाने, न शोहरत, न दौलत, ये सब मेरे लिए बेमानी हैं। हज़रत ईसा से भी बहुत सी औरतें मोहब्बत करती थीं, मगर उन्होंने उनसे मुंह मोड़ लिया। मैं भी इश्क की राह में ईसा की तरह हो चुका हूँ। अच्छा, तो अब ईसा अलैहिस्सलाम का क्या हुआ? तुम्हारे बाबा ने मुझे उस नबी की सुन्नत की तरफ बुलाया जो फरमाते हैं, मुझे 3 चीज़ें महबूब की गईं, नमाज, खुशबू और औरत। क्या खूबसूरत दावत है ये! दावत देने वाला भी हसीन और जिसे दी जा रही है वो भी मुबारक। तुम जवान हो, खूबसूरत हो और कीमिया के भी कई ख्वाहिशमंद थे। फिर उसने शम्स को क्यों चुना? कुर्बानी के लिए। किस चीज़ की कुर्बानी? किसके लिए कुर्बानी? कुछ नहीं, बस इश्क के लिए कुर्बानी। तो हम दोनों ने मौलाना को खुश करने के लिए हाँ की। ऐसा ही है ना? कीमिया जब बोलती तो यूं लगता जैसे बर्फ़ पिघले हुए पहाड़ों से बहता हुआ नगमा हो, ऐसा चश्मा जिसे दिन भर सुना जाए और फिर भी दिल न भरे। उसकी आवाज़ कभी गुलाब की पंखड़ी की तरह नरम होती, कभी सुबह की शबनम की ताजगी लिए, कभी नए की सोज भरी सदा, कभी मखमली मुलायमत और कभी आंसुओं की हिद्दत। एशिया और हिंदुस्तानों की दास्तानों में जिन हूरों की तारीफ़ें की गई थी, वो कीमिया के आगे सिर्फ एक कली मालूम होती। लेकिन मैं जमशेद न था कि उसके कदमों में कहकशाएं बिछा देता, और वैसे भी मेरे अंदर वो शोला कब का बुझ चुका था। मैंने अपनी शहवत को बरसों पहले दफना दिया था। मैं औरत की तस्कीन के काबिल न था। मैंने अपनी आग को सूरज में डाल दिया। अब मैं सिर्फ राख था, इतना बुझा हुआ कि कागज़ के एक किनारे को भी न जला सकता था। मेरी हर चीज़ मौलाना के नाम हो चुकी थी। मैं सिर्फ उनका था। मौलाना बोल रहे थे और मैं आसमान में बहते सफ़ेद परिंदों के मानंद खो चुका था। मैंने नज़र उठाई और देखा, कीमिया की गहरी आँखें मेरे नीले समंदरों में झांक रही थी। मैं वो आग था जो जलता भी था, जलाता भी था, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता बुझ रहा हूँ। तो सारी आग तुमने मेरे बाबा पे निछावर कर दी? नहीं, वो तो पहले ही जल रहे थे। मैं तो सिर्फ हवा का एक झोंका था। तो क्या तुम भी दूसरों की तरह ये समझते हो कि मैंने मेरे बाबा को बदल दिया? नहीं, तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ खुश हैं। मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मेरी सोचों की वादी में कीमिया का सरापा छा गया। नई सुबह का एक खिला हुआ गुलाब, ऐसा चमकता हुआ हुस्न जिस पर हसद करने वाले भी बेशुमार थे। अलाउद्दीन समेत कई नौजवान उस पर जान निछावर कर रहे थे। उसकी हर अदा बाग के फूलों को मुरझा देने के लिए काफ़ी थी। पेशानी चांदनी की रोशनी जैसी, आंखें रात के अंधेरे की मानंद गहरी, बाल बादलों की तरह घने और रुखसार पर पड़ने वाली लटें गुलाब की पत्तियों से ज़्यादा नाजुक। कीमिया की हम उम्र लड़कियां उस पर रश्क करती थीं और उसे हसद की नज़र से देखती थीं। इतनी पाकीज़ा के नज़र बद का ख़तरा हर वक्त मंडलाता रहता था। ये वो लड़की थी जो इश्क में कुर्बानी की मिसाल बनने जा रही थी। जब मौलाना ने कीमिया से मेरा जिक्र किया तो उसने न हिचकिचाहट दिखाई, न खौफ, बल्कि एक शानदार जवाब दिया। बाबा जान, मैं जानती हूँ कि आप शम्स से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अगर मेरी कुर्बानी से आपका दिल खुश होता है तो ऐसी 1000 कीमिया आप और शम्स पर कुर्बान। जिस तरह हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की रज़ा में कुर्बान करने का कसद किया, उसी तरह मैं भी अपनी ज़िंदगी शम्स के लिए कुर्बान कर दूँगी। ये सिर्फ आपके इत्मीनान के लिए नहीं, बल्कि उस इश्क का हिस्सा बनने के लिए जिस पर फरिश्ते भी रश्क करते हैं। दुनिया की हर चीज़ से किनारा कश हो चुकी हूँ। बस ये चाहती हूँ कि आपके इश्क का एक ज़र्रा मुझे भी नसीब हो। मैं भी एक जुलेखा बनना चाहती हूँ। कीमिया से बात करने के बावजूद मेरे दिल की बेचैनी ख़त्म न हुई। मैं मुस्तरब था, मौलाना को दुख पहुँचाने के खौफ से। मेरी परेशानी ये न थी कि मैं अपने बरसों के इश्क के सफ़र में कहीं ठोकर खाकर गिर ना जाऊँ, बल्कि मेरा खौफ ये था कि अगर कीमिया को उदास कर दिया तो मौलाना इस गम में टूट कर बिखर ना जाए। ये पहली बार था जब मैंने खौफ को अपने अंदर महसूस किया। वो शम्स जो हमेशा निडर और बेखौफ था, अब एक कमज़ोर हिरनी की तरह लरज़ रहा था। अगर कीमिया इस निकाह में खुश न रही तो क्या मौलाना की मोहब्बत फिर रंजो मलाल में बदल जाएगी? घुटन ज़दा रिश्ते
कभी भी हकीकी खुशियों को जन्म नहीं देते, और मैं वो शख्स था जिसने हमेशा इश्क की रोशनी में ज़िंदगी गुजारी। मेरी ज़िंदगी में कभी किसी और का मकाम न था, न किसी औरत की मोहब्बत के लिए मेरे दिल में कोई दर खुला था। ये निकाह मेरे अंदर खड़ी की गई वही दीवारें तोड़ने आ रहा था। कीमिया मेरे इश्क की आजमाइश बन सकती थी। ये ज़िंदगी का एक अजीब खेल था जिसमें मैं खुद बहकर डूबने वाला था, लेकिन वही कीमिया मेरे दिल की तन्हाई का वाहिद चिराग बनने जा रही थी। मैंने खुद को एक सवाल में जकड़ा पाया। अगर वो मुझे नापसंद करे, अगर वो मुझे कमज़ोर समझे, अगर उसका दिल मेरा ना हो सका, मगर मोहब्बत को ना किसी चेहरे के नकाब की ज़रूरत होती है, न किसी तसन्नो की। वो मेरी मोहब्बत में कैद हो चुकी थी। वो मेरे बगैर कुछ न थी, और मैं उसका पहला और आखिरी इश्क था। कीमिया आसमान में एक सितारा था, वो सितारा जो दिखाई तो देता था मगर छुआ नहीं जा सकता। वो ज़मीन पर एक फिरदौस थी जो सरापे हैरत में डालने वाली थी, मगर उसमें ज़िंदगी बसर करना मुमकिन नहीं था। कीमिया वो ख़जाना थी जिसे चोरों की नज़र से बचाया गया था। वो राज थी जो महफूज रखा गया था। कीमिया का बातिन इश्क के दरिया में डूबा हुआ था। वो प्यासी थी और इस प्यास में खामोशी थी। शायद वो मुझे ही अपनी मंजिल समझकर इंतज़ार कर रही थी। अपने रब से दुआओं में मेरी तलब करती रही थी। वो मरियम की तरह खामोशी के रोज़े रखती रही। वो हाजरा की तरह रब पर भरोसा रखने वाली थी। वो खदीजा की तरह वफादारी की अलामत थी। वो राबिया बसरी की तरह दुनिया की ख्वाहिशात से आज़ाद थी। जब उसके हम उम्र अपने जहेज़ की तैयारियों में मसरूफ़ थे, वो कहती थी, हया और इखलाक से बेहतर जहेज़ क्या हो सकता है। जब लोग अपने माल व दौलत को असल खुशहाली समझते, वो कहती थी, हकीकी दौलत अंदरूनी पाकीज़गी में है। वो दुनिया के खिलौनों से बेनियाज थी, अपने लिए कभी दुआ नहीं मांगी, और इश्क की मेराज पर अपने आप को कुर्बान करने को तैयार थी। ये कीमिया थी, मौलाना की बेटी, मेरी तकदीर, मेरी आजमाइश और शायद मेरी आखिरी पनाह।